So we were dealing with the accounts of the partnership, right? And we understood the two adjustments. One, interest on capital, right? Add in expense, add in capital. Add in expense, add in capital. मतलब expense debit होगा, capital credit होगा. And interest on capital is calculated opening capital pay 12 months, additional capital pay from the date of addition till the year ends. Second, interest on drawings. Interest on drawings is add in income. We charge interest on the drawings of a partner. So it's our income. So we will be adding it in income, therefore credit. And we subtract or deduct from capital. मतलब डेबिट. समझ में आ रहा है? So एंट्री आती है कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राइट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट. कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट क्रेडिट. आगे. Then if nothing is mentioned, we calculate interest on drawings for 6 months. If they have given you dates, then we will calculate as per dates. But if dates are missing, then we will be calculating for 6 months. And almost in every question, we will be calculating interest on drawings for 6 months. Then, maintaining the capital accounts. Try to understand. Methods of maintaining capital account. Capital accounts. पार्टनरशिप फर्म में एक से ज्यादा पार्टनर्स होते हैं, बराबर. एंड देयरफॉर और एक से ज्यादा ओनर्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज पार्टनर्स. एंड एवरीवन विल ब्रिंग कैपिटल. सो जितने पार्टनर्स उतने कैपिटल अकाउंट. इफ देयर आर ए बी सी 3 पार्टनर्स, there will be 3 capital accounts, A capital, B capital, C capital, like that. There are 2 ways or 2 methods of maintaining capital accounts in the partnership firm. Partnership firms can maintain capital account using first, fixed capital method. Fixed capital account method. And another option is fluctuating capital account method. Fixed capital account method and fluctuating capital account method. Under fixed capital account method, every partner will have 2 accounts in the books, or every partner is represented by 2 accounts in the books of the partnership firm. लिख लेना, for every partner there will be 2 accounts for every partner. There will be 2 accounts for
each partner. In the books of the firm. Obviously, we are learning the books of the firm. And in fluctuating capital method, there will be one account for each partner. In the books of the firm. Again. So, under this method, there is a capital account. And there is current account for each partner. एक होता है कैपिटल अकाउंट, दूसरा होता है करंट अकाउंट. मतलब क्या? ट्राई टू अंडरस्टैंड. फॉर एवरी पार्टनर देयर विल बी टू अकाउंट्स, वन कैपिटल अकाउंट एंड एक होगा करंट अकाउंट. लाइक सपोज ए एंड बी आर द पार्टनर्स, तो ए के लिए दो अकाउंट्स आएंगे, एक एज कैपिटल अकाउंट एंड दूसरा एज करंट अकाउंट. एंड फॉर पार्टनर बी the two accounts will be B's capital account and B's current account. So, capital account is maintained to record the transactions between partnership and the firm. Partnership firm and the partner. Try to understand क्या बोल रहा हूँ. This is a firm and this is a partner. There are transactions between these two. Which are those transactions? Like partner has given capital, partner has withdrawn like some cash, some goods for his personal use, that is drawings. Interest on capital, partner charges interest on his capital to the firm, so firm pays interest. Interest on drawings charged by the firm to the partner. If a partner is a working partner, right, he may get salary from the firm. Partner may get commission from the firm for his extra work. Partners get profit from the firm. जो end में profit बचेगा, they will be sharing the profits. Then all these transactions are recorded in the books of the firm because firm is one of the party to this transaction. So firm and the partner owners के बीच में बहुत सारे transactions होते हैं and उसके लिए हम capital account maintain करते हैं, बराबर. And now under fixed capital method we will be maintaining two accounts for each and every partner. So some transactions will be recorded in the capital account, some transactions will be recorded in the current account. लिख लेना. यहाँ पे capital brought in by partner, by partner. If a partner brings capital, that transaction will be recorded in the capital account. Second, withdrawal of capital by partner.
if partner withdraws capital, drawings is different and withdrawal of capital is different. 12th में withdrawal of capital नहीं है, but yes, withdrawal of capital is a concept and that is a different than the drawings. But if there is a withdrawal of capital, that will be added or that will be recorded in the capital account. Current account में all other transactions, इन दोनों के सिवा all other transactions between firm and the partner are recorded in the current account. Like all other transactions between partner and firm are recorded, right, in the current account of the partner. Like drawings by the partner, salary to partner, third, commission to partner, commission to partner, 4, interest on capital, 5th, interest on drawings, 6, sharing of the profits and losses, 7 all these transactions, these are some of the examples. इसके सिवा भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, बट जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बोल रहा हूँ. These transactions are recorded in the current account of the partner. If you observe these transactions, you will find generally capital brought in by partner and capital withdrawn by partner are non-recurring in the nature. Non-recurring in the nature. So, and drawing, salary, commission, all these transactions are recurring in the nature. Recurring. So हमने पार्टनर और फर्म के बीच में जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनको दो में डिवाइड किया, नॉन रिकरिंग एंड रिकरिंग. नॉन रिकरिंग मतलब जो हमेशा होते नहीं, कभी कभार होते, once upon time like that. So partner brings capital, not daily, not monthly, not even yearly. वो एक बार लाके रख देता है, फिर if required then only he will bring additional capital. So it is not that frequent transaction. So this is non-recurring in the nature, that will be recorded in the capital account. And drawings, generally monthly drawings करेगा, frequently drawings करेगा. Salary to partner, अगर आप deed provides for salary to partner, partner will get salary on monthly basis, commission maybe yearly basis, interest on capital at the end of every year. You will give interest to the partner, interest on drawings. At the end of every year, you will charge interest on partner's drawings. And sharing of the profits or losses are yearly items, means every year they will again come, right, recur. They are recurring in the nature. They will come in picture each at the end of every year. So they are recurring in the nature. So मैंने एक प्राइमा फेसिया जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे पार्टनर एंड पार्टनरशिप के बीच में, इनको नॉन रिकरिंग एंड रिकरिंग ऐसे क्लासिफिकेशन किया. नॉन रिकरिंग वालों को मैं कैपिटल में रिकॉर्ड करूंगा, रिकरिंग वालों को करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करूंगा. करंट अकाउंट इज लाइक ए रनिंग अकाउंट जो हमेशा चेंज होता रहेगा. करंट अकाउंट इज लाइक ए रनिंग अकाउंट, लाइक करंट बैंक अकाउंट होता है हमारा. करंट अकाउंट वो रनिंग अकाउंट होता है, डेली पैसे आएंगे, डेली
विड्रॉ किया जाएगा लाइक दैट. बिजनेस ओपन्स करंट अकाउंट. सेविंग्स अकाउंट में डिपॉजिट्स अनलिमिटेड है बट विड्रॉवल्स लिमिटेड है. सो यू कैन नॉट से इट इज दैट मच रनिंग अकाउंट. करंट अकाउंट में डिपॉजिट्स अनलिमिटेड, विड्रॉवल्स भी अनलिमिटेड है. So it is a recurring account. Balance keeps on changing on daily basis. On similar concept, पार्टनर ने जो हमारे साथ कैपिटल रखा है तो हमने उसको दो में डिवाइड किया, एक नॉन रिकरिंग अलग, रिकरिंग अलग. ठीक है. सो कैन आई से इफ आई एम गोना record non recurring transactions in capital account, generally capital account balance is fixed. It does not change. Like A and B started business and they introduced 10 lakhs capital each. और वो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया. फर्स्ट ईयर में कुछ एडिशनल कैपिटल नहीं, सेकंड ईयर में एडिशनल कैपिटल नहीं, थर्ड ईयर में एडिशनल कैपिटल नहीं, फोर्थ ईयर में एडिशनल कैपिटल नहीं. So the balance will remain same, 10 lakhs, 10 lakhs, 10 lakhs, 10 lakhs till fourth year. Fifth year में both introduce additional 5 lakhs capital. So fifth year onward, the capital balance will be 15 lakhs, 15 lakhs, 15 lakhs. So because of this, capital account balance remains constant, fixed. Are you getting my point? So अगर उसमें ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड नहीं होने वाले तो बैलेंस क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. And in this case, current account में every time, right, the balance keeps on fluctuating, balance keeps on changing. यहाँ पे लिख लेना, right? Balance, current account balances, current account balance, right, is ever changing, always changing. Always changing. हमेशा चेंज होते रहता है. Because you can find every month there will be drawings. At a certain period there will be drawings. Salary रहेगी, commission रहेगी, interest on capital at the end of every year, interest on drawings at the end of the every year, distribution of profit and losses at the end of the every year. So at the end of each year, it has to change. So as capital account balance remains fixed, current account balances keeps on changing. कैपिटल का बैलेंस फिक्स होता है, इसलिए इस मेथड को बोला जाता है फिक्स कैपिटल मेथड. द बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट रिमेन्स फिक्स्ड. जो भी चीजें कैपिटल का बैलेंस फ्रीक्वेंटली चेंज करती है उनको एक अलग अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया जिसका नाम है करंट अकाउंट, रनिंग अकाउंट. एंड देयरफॉर जनरली द बैलेंसेस ऑफ कैपिटल अकाउंट रिमेन फिक्स्ड एंड देयरफॉर दिस मेथड इज कॉल्ड एज कैपिटल फिक्स कैपिटल मेथड. एंड इसमें कंट्रोल रहता है. पार्टनर का जो कैपिटल है ना वो फिक्स रहेगा, वो उसको हम निकालने नहीं देते जनरली. देन अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में, ओके आगे चलता हूं. यहां पे एज ए पार्टनर एक बार कैपिटल उसने पार कर दिया, कैपिटल लेके आ गया वो, we will not generally allow him to withdraw the capital and we will not allow him to change the capital. Therefore, the capital balance is fixed and that balance is always a credit balance. So under fixed capital method, capital account shows credit balance. लिख लेना, always shows credit balance. However, current account balance keeps on changing. It may show debit balance, it may show credit balance. Generally, it should show credit balance, but it is not mandatory. If drawings are more, if there are losses,
In that case, current account balance may show negative balance, that is debit balance. So लिख लेना, it may show क्रेडिट और डेबिट बैलेंस, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस मतलब हमें उसको पे करना है, फर्म को उसको पे करना है, एंड डेबिट बैलेंस मतलब पार्टनर हैज टू पे टू द फर्म. When there can be debit balance, when partner has drawings, more drawings, or the firm is suffering from the losses, and because of that losses, partner ka right current account shows debit balance. Then but उसका कैपिटल इंटैक्ट है, कैपिटल को हमने हाथ नहीं लगाया, कैपिटल एज इट इज है. Then आगे नाउ द सेकंड. सो एक है फिक्स कैपिटल मेथड जिसमें दो अकाउंट रहेंगे, रिकरिंग के लिए करंट अकाउंट, नॉन रिकरिंग ट्रांजैक्शंस के लिए कैपिटल अकाउंट. फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, देयर विल बी one account for each partner in the books of the firm, and that account is called as capital account. ये खिचड़ी मेथड है. खिचड़ी सब एक ही जगह पे लाके डाल दिया, रिकरिंग ट्रांजैक्शन वहां पे, नॉन रिकरिंग ट्रांजैक्शन वहां पे. जैसे यहाँ पे सॉर्टिंग था, एडिशनल कैपिटल एंड विड्रॉल कैपिटल कैपिटल अकाउंट में, बाकी सब करंट अकाउंट में. इसमें ऐसे नहीं, एवरीथिंग, ये जितने सारे ट्रांजैक्शन दिख रहे हैं क्या, यहाँ पे दो, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकंड, और यहाँ पे कितने, ऑलमोस्ट 6. यहाँ के 2 और यहाँ के 6, टोटल 8 ट्रांजैक्शन, सबके सब एक अकाउंट में. खिचड़ी, देयर इज नो सॉर्टिंग आउट. मैं इसको खिचड़ी मेथड बोलता हूँ. फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड मतलब खिचड़ी मेथड, सब वहां पे आके डाल दिया. लिख लेना, ऑल ट्रांजैक्शंस right between partner and firm are recorded in capital account. That is, 2 transactions which we were recording in the capital account plus 6 transactions जो हम करंट अकाउंट में मेंटेन कर रहे थे, ये वाले 6 सब उसमें रिकॉर्ड किए जाएंगे, एक में ही सब. एंड देयरफॉर द बैलेंस कीप्स ऑन चेंजिंग. इसमें कभी भी बैलेंस फिक्स नहीं रहता. द कैपिटल अकाउंट बैलेंस कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग. फिक्स कैपिटल में क्या हो रहा था, फिक्स कैपिटल में क्या हो रहा था, कैपिटल का बैलेंस फिक्स था. इसमें क्या हो रहा है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में कैपिटल का बैलेंस चेंज होता है, ऑलवेज चेंज होता है. तो लिख लेना, द कैपिटल अकाउंट बैलेंस कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग. And therefore, this method is called as fluctuating capital method. अगर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस फिक्स रहेगा, उसको फिक्स कैपिटल मेथड बोला जाएगा. तो उसमें फिक्स रहने के लिए जो ट्रांजैक्शंस बैलेंस चेंज करते हैं, रिकरिंग ट्रांजैक्शंस, उनको अलग कर दिया. क्या बोला, ध्यान देना. इफ यू वांट टू मेंटेन द कैपिटल अकाउंट बैलेंस फिक्स्ड, तो ऑल दोस ट्रांजैक्शंस which keeps on fluctuating the capital account balance, recurring transactions, आपको उनको सेग्रीगेट करके अलग अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा. इसलिए फिक्स कैपिटल में 2 अकाउंट्स रहते हैं फॉर एवरी पार्टनर, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट. उसकी वजह से क्या होता है, कैपिटल बैलेंस ईयर ऑन ईयर सेम रहता है, एंड फर्म का भी कंट्रोल रहता है उनके कैपिटल पे. बट
इफ यू मिक्स देम, इन दैट केस कैपिटल का बैलेंस हमेशा चेंज होता रहेगा, एंड देयरफॉर such method of maintaining capital account is called as fluctuating capital method. ठीक है, एंड हमेशा चेंज होता रहेगा, therefore the balance may be debit or may be credit. लिख लेना, capital account under this method shows, may show credit, generally credit दिखता है, but sometimes it may also show debit balance. ठीक है, देन आगे क्लियर है, आगे. So this is the difference between the two methods. चलो जिनको लिखना है जल्दी लिखो, जल्दी करो. And this is very important point because हम ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में ये कर रहे हैं. जल्दी लिखना. ठीक है, मैं वीडियो हाइड करता हूं, मतलब मैं उसको थोड़ा स्क्रीन मैनेज कर सकता हूं. मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट. If there any question, let me ask. Check. Current account is an account where all recurring transactions are recorded. ठीक है, current account is an account where all recurring transactions are recorded of, right, कैपिटल के केस में. सो कैपिटल में, फिक्स कैपिटल में हमने दो ट्रांजैक्शंस किए, लाइक नॉन रिकरिंग एंड रिकरिंग, ऐसे दो करते हैं हम. नॉन रिकरिंग कैपिटल में रिकॉर्ड करेंगे, नॉन रिकरिंग खाली दो टाइप, राइट. मैं आपको ये बोलता हूँ, ये वन में इग्नोर दिस, ये आपके महाराष्ट्र बोर्ड में नहीं है. इवन समवन इग्नोर्स दैट, स्टिल इट विल डू. खाली आप बोलो कैपिटल आया तो कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, बाकी सब ट्रांजैक्शंस करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे. बट एक्चुअली देयर इज आल्सो कंसेप्ट ऑफ विड्रॉल ऑफ कैपिटल. डोंट वरी अबाउट इट. आपके इसमें ज्यादा कोई टेंशन देने वाली बात नहीं रहेगी. लिखो, मैं फिर से समझाता हूँ, डोंट वरी. ओके, देयर इज वन क्वेश्चन. यस सोहम, you have to unmute yourself. सोहम, ओके ठीक है.
Let's take some examples. एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा, ठीक है. I will take from your textbook. I expect now everyone has at least a textbook. मैंने बोला था परचेस करके रखो. देखो, methods of capital account. Fixed capital method में every partner has his capital account and current account in the books, and under fluctuating capital method capital account रहेगा, ठीक है. Okay. Okay, I will go for this example. Okay. Anand and Bharat are the partners, sharing profits and losses in the ratio of 2:3. This is their profit sharing ratio, PSR. On 1st April 2019, the capital balances are 60,000 and 30,000. अच्छा, आनंद का कैपिटल 60 है, भारत का कैपिटल 30 है. Their drawings are 12,000 and 10,000 respectively. They have given you capital account balances at the beginning of the year and उस ईयर के ड्राइंग्स दिए उन्होंने, ठीक है. सो आनंद के ड्राइंग्स 12,000 है, भारत के ड्राइंग्स 10,000 है. As per the agreement, that is partnership deed, partners are allowed 10% interest on their capitals, and interest on drawings is to be charged at the rate of 12% per annum. Interest on capital is 10%, interest on drawings is 12%. हमें वो कैलकुलेट करना होगा. आगे, आनंद गेट सैलरी ऑफ 2,500 पर मंथ. आनंद को हम सैलरी दे रहे हैं 2,500 पर मंथ, मल्टीप्लाई बाय 12 करोगे 24,000 प्लस 6,000, आई थिंक मेरे हिसाब से 30,000 उसकी सैलरी रहेगी ईयरली. एंड Bharat is entitled to get a commission of 3% on the net sales, which are 5 lakhs. 3% of net sales, which are 5 lakhs. So 5 lakhs is a net sales. Uska 3%, 1% will be 5,000. उस multiply by 3, 15,000 उसको commission देनी है भारत को. The firm's profit is 60,000. ये प्रॉफिट हम 2:3 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. Prepare capital accounts for the year ended 31st March 2019 under fixed capital method and fluctuating capital method. पहले तो यहाँ पे चेंज करो, this should be 20. There is a printing error. अगर आपको 1st April 19 के कैपिटल दिए, 1st April 19 के कैपिटल दिए और आपको प्रीवियस डे के कैपिटल क्यों ढूंढने को बोलेंगे? एक साल के बाद के बोलेंगे ना, लिख लेना. सो वहां पे जिनके पास टेक्स्ट बुक है, मेक इट 2020, मेक इट 2020, ठीक है. ध्यान देना, मैं समझाता हूं. एवरीथिंग विल गेट क्लियर. हैव अ पेशेंस. ओके, we will be preparing combined capital account. combined capital account मतलब जैसे हम कैश बुक 11th में कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम साथ में निकालते थे, वैसे हम combined capital and combined current account निकालते जाएंगे. because here there are more than one owner, more than one partner. अब हमें समझना है, ध्यान देना. सो पहले हम करेंगे ए.
मैं पहले फ्लक्चुएटिंग करूंगा. फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. ठीक है, देखते हैं. लेट मी फर्स्ट कंप्लीट, बाद में आप लिख लेना. फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में देयर इज ओनली वन अकाउंट, दैट इज कैपिटल अकाउंट. करंट अकाउंट नहीं होता है. खिचड़ी मेथड, सब इसमें ही खिचड़ी होगी. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है, सब में से कंबाइंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. मैं जस्ट लिखूंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. So this is Anand and Bharat. Instead of preparing two capital accounts, आनंद का अलग, भरत का अलग, मैंने उनको एक साथ ही रख दिया. So this column indicates debit column of Anand's capital. This column indicates credit column of Anand's capital. This column indicates debit column of Bharat capital, and this is credit column of Bharat capital. So मैंने दो अकाउंट की जगह एक ही अकाउंट कर दिया, and that is always advisable. ठीक है, मुझे बाद में लगने वाला है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ. ये मैं फिर से मुझे ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा. लेट्स सी, ध्यान देना. अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, एवरी पार्टनर हैज सिंगल अकाउंट, दैट इज कैपिटल अकाउंट. तो आनंद का एक अकाउंट रहेगा, आनंद कैपिटल अकाउंट. भरत का एक कैपिटल रहेगा, भरत कैपिटल अकाउंट. फर्स्ट वी विल फाइंड आउट वर्किंग नोट. वन, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. आनंद एंड भरत. देखते हैं. ऑन ओपनिंग कैपिटल्स. अच्छा, देखते हैं. आनंद का ओपनिंग कैपिटल कितना था? दे हैव गिवन यू. आनंद का कैपिटल 60 है और भरत का 30 है, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 10%. सो 60 एंड 30, 60,000 and 30,000 at the rate of 10%, obviously for 12 months. ओपनिंग कैपिटल पे हमेशा 12 मंथ्स के लिए. ठीक है. So that will be 6,000
बराबर, यहाँ पे आएगा 3000। उन दोनों का ओपनिंग कैपिटल था 60,000 30,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग कैपिटल पे पूरे साल का एंड एडिशनल कैपिटल पे फ्रॉम द डेट ऑफ एडिशन टिल द ईयर एंड। इज देयर एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में? कहाँ पे एडिशनल कैपिटल के बारे में लिखा है कि नहीं? एड ऑन एडिशनल कैपिटल, कुछ भी नहीं, एडिशनल कैपिटल ही नहीं है। ओपनिंग कैपिटल के बाद कुछ एडिशनल कैपिटल नहीं है, देयरफॉर देयर इज नो इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल। तो कितना आ गया है? दिस इज 6,000 एंड दिस इज 3,000। ठीक है, 6,000 एंड 3,000। आगे हम्म हम्म देखते हैं। सो व्हाट इज द एंट्री ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? नीचे एंट्री लिखो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री रहेगी, राइट? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस से डेबिट किया जाएगा। 6,000 प्लस 3,000 टोटल 9,000। टू आनंद कैपिटल अकाउंट, एड इन एक्सपेंस एड इन कैपिटल। आनंद के कैपिटल में 6,000 ऐड करेंगे। टू भरत कैपिटल अकाउंट, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल में ऐड कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज वी आर फॉलोइंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, जिसमें हर चीज कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होती है। ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, बस एक ही अकाउंट हर पार्टनर के लिए कैपिटल, दैट्स इट। पूरी खिचड़ी सब कुछ कैपिटल में ही रिकॉर्ड होगा। सो आई कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आनंद का 6,000 आ गया, भरत का 3,000 आ गया, एंड आई विल रिकॉर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन कैपिटल अकाउंट ओनली। ठीक है। सेकंड, वर्किंग नोट नंबर 2, calculation of interest on drawings. Interest on drawings. And they have given you drawings, Anand and Bharat. Drawings दिए उन्होंने आपको, पढ़ो। Their drawings are 12,000 and 10,000 respectively, right? आनंद के drawings 12,000 है and भरत के drawings 10,000 है। 12,000 and 10,000 respectively, 12 and 10, perfect. Have they given you date of drawings? उन्होंने dates of drawings दिए क्या? No. So I will be calculate interest. Interest on drawings is at the rate of 12%. क्वेश्चन में 12% लिखा है, तो हम 12% के हिसाब से निकालेंगे। Is dates of drawings are not given, I will calculate for 6 months by default. मिड ऑफ द पीरियड में मान के हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालेंगे। सो दैट विल बी 720 and 600। अनंत के ड्राइंग्स 12,000 के, उस पे इंटरेस्ट हम उसको लगाएंगे, हम लगाएंगे, फर्म लगाएंगे 720, उससे रिकवर करेंगे वो। भरत के ड्राइंग्स 10,000 है, उस पे हम 6% के हिसाब से 600 रुपीज का इंटरेस्ट लगाएंगे। ठीक है, ये हमारा गेन होता है, फर्म का गेन होता है। एंट्री लिखो। हमें आनंद से रिकवर करना है 720, जिससे रिकवर करना है उसको डेबिट किया जाएगा आनंद कैपिटल अकाउंट। 720
दूसरा भरत कैपिटल अकाउंट 600। कैपिटल को डेबिट कर रहे हो मतलब कैपिटल से माइनस कर रहे हो। 2 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 1320 1320। आनंद से रिकवर करेंगे, भरत से रिकवर करेंगे इंटरेस्ट ऑन देयर ड्रॉइंग्स। आपने हमारे पैसे यूज किए इसलिए हम आपको इंटरेस्ट लगा रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या, हम आपके पैसे यूज कर रहे हैं इसलिए हम आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं। देन वी आर द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म। वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 3 क्या है, पढ़ो। आनंद टू गेट 2500 per month salary। आनंद सैलरी 2500 multiplied by 12 months 30,000। उसके पूरे साल की सैलरी 30,000 है। आनंद एज ही इज वर्किंग फॉर द फर्म वी आर गिविंग हिम सैलरी ऑफ 2500 पर मंथ। हमें आनंद को सैलरी देनी है, आनंद को देनी है तो आनंद को क्रेडिट किया जाएगा। एंड सैलरी टू पार्टनर इज एन एक्सपेंस ऑफ द फर्म। हम उसको सैलरी देंगे, ये हमारा एक्सपेंस रहेगा, तो एंट्री आएगी, लिख लेना एंट्री। सैलरी टू आनंद, सैलरी टू आनंद अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस है, इट इज एन एक्सपेंस ऑफ द फर्म 30,000। 2 आनंद के कैपिटल में ऐड करेंगे। हम कभी कैश में नहीं देते, पार्टनर्स के ट्रांजैक्शन कैश में नहीं करते। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है बट हम कैश में नहीं देते, बोलते हम कैपिटल इंक्रीज करके रखेंगे, बाद में जब चाहिए तो विड्रॉ कर। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम कैश में नहीं लेते, हम बोलते कैपिटल से माइनस करके रखेंगे, ठीक है। सिमिलरली उसकी जो सैलरी है हम उसको कैश में नहीं देंगे, हम उसका कैपिटल में ऐड करके रखेंगे। 2 आनंद कैपिटल अकाउंट। What are the effects? Add in expense, add in capital. Add in expense, add in capital. Next, working note number 4. Bharat is entitled to commission. भरत कमीशन, फर्म भरत को कमीशन देने वाली है। देखते हैं क्या क्वेश्चन में लिखा है, पढ़ो। Bharat is entitled to get commission at the rate of 3% on the net sales which are 5 lakhs. 3% of net sales. Therefore, 5 lakhs का 3%. 15,000. लिखो एंट्री। And what is the entry? When we give commission to the partner, it is an expense. जैसे salary is an expense, interest on capital is an expense, commission to partner is also expense. डेबिट किया जाएगा। टू किसको देना है, भरत। भरत के कैपिटल को क्रिएट करो, ऐड करो। मिल गया। सो हमने वैल्यूज ढूंढे, अब हम उनके इफेक्ट देते हैं, ठीक है। लिखो जल्दी लिखो जिनको लिखना है। मीनवाइल किसी ने कुछ पूछा है तो मैं देखता हूं।
यू कैन राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप हेडिंग आपकी मर्जी है। देखते हैं, ठीक है। सो एक आपको समझने के लिए, द क्रेडिट इन कैपिटल इज इंक्रीज इन कैपिटल and debit in capital is decrease in capital. Whenever you have to increase the capital, you should credit the capital. Whenever you have to decrease the capital, you should debit the capital. There were opening balances by balance brought down. They had given you Anand का opening capital 60,000 था and Bharat का opening capital 30,000 था. If nothing is mentioned, obviously the capital shows credit balance. उन्होंने लिखा है आनंद का 60,000 एंड भरत का 30,000 कैपिटल है, इट मींस इट हैज टू बी क्रेडिट बैलेंस, एंड इफ इट इज क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट से स्टार्ट होगा, इसलिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, देयर इज नो डेट कॉलम इन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। हम 12th में कहाँ पे जनरली डेट कॉलम ओपन नहीं करते, हम डायरेक्टली पर्टिकुलर्स अमाउंट कॉलम ही रखते हैं। नेक्स्ट, their drawings during the year is 12,000 and 10,000. Drawings reduces capital. 2 drawings. Anand 12,000 and Bharat 10,000. So अब भी देख सकते हो इसका कैपिटल 60 है, क्रेडिट 12,000 डेबिट हो गया, तो कैपिटल बिकेम 48,000। ड्राइंग की वजह से कैपिटल कम होता है। आप बोलते हो सर ड्राइंग्स कैपिटल से माइनस करो, मैं कैपिटल से माइनस कर रहा हूं। डेबिट इन कैपिटल मींस माइनस फ्रॉम कैपिटल एंड क्रेडिट इन कैपिटल मतलब ऐड इन कैपिटल। इसका 30,000 कैपिटल था, 10,000 ड्राइंग्स है, मतलब उसका कैपिटल 20,000 है। देखो बैलेंस इज नाउ 20,000। आगे हमें उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है एज पर एग्रीमेंट। आनंद को 6,000 देना है, भरत को 3,000 देना है। उनके कैपिटल में हम ऐड करेंगे, मतलब कैपिटल को क्रिएट करेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आनंद को 6,000, भरत को 3,000। हम उनके कैपिटल इंक्रीज कर रहे हैं। पहले 60 कैपिटल था प्लस 6,000, 66 हो गया, माइनस ड्रॉइंग्स। 30,000 कैपिटल था प्लस 3,000 माइनस 10,000। सो 3,000 की वजह से कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। सो एंट्री इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कैपिटल को क्रेडिट कर रहे हो मतलब कैपिटल में ऐड कर रहे हो। फिर हमें उन्होंने जो ड्रॉइंग्स किए ना 12,000 और 10,000, उस पे हमें उनको इंटरेस्ट लगाना है, मतलब उनसे रिकवर करेंगे, उनको डेबिट करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इसका 600 है, नहीं इसका 720 है एंड इसका 600 है। $720 and $600। सो मैंने उनके कैपिटल को डेबिट किया। एंट्री आ रही है आनंद कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, भरत कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। कैपिटल के डेबिट पे मतलब कैपिटल डेबिट है एंड टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्रेडिट है। आगे ठीक है, हमें उनको सैलरी देनी है। किसको सैलरी देनी है? आनंद को 30,000 की सैलरी देनी है, तो आनंद के कैपिटल में ऐड करेंगे, ले ले सैलरी बाय सैलरी टू आनंद। कितनी देनी है उसको? 30।
उसके कैपिटल में ऐड किया, जिसके सामने बाय लिखा है वो डेबिट। सो सैलरी टू अनंत अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट एंट्री। भरत को कमीशन देनी है, दे दो, बाय कमीशन टू भरत। हम उसको कितनी कमीशन देने वाले थे, हमने निकाली थी 15,000 की कमीशन देने वाले। सैलरी जनरली फिक्स होती है, कमीशन चेंज होती रहती है, ठीक है, दोनों डिफरेंट है। लास्ट में क्या बाकी है, उन्होंने लिखा है प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 60,000। ये 60,000 किसके है, पार्टनर्स के। कौन पार्टनर्स है, आनंद एंड भरत। एंड किस रेशियो में पार्टनर है, 2:3। 60,000 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। 60 डिवाइडेड बाय 5, 2 + 3 5 होता है। 60 डिवाइडेड बाय 5 12,000, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 2 24, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 3 36। प्रॉफिट की वजह से कैपिटल इंक्रीज होता है। कैपिटल इंक्रीज करना है मतलब क्रेडिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनटू ब्रैकेट एनपी नेट प्रॉफिट 3:2 में, 2:3 में सॉरी। आनंद को 24,000 का प्रॉफिट मिलेगा 60 में से, भरत को 36,000 का कैपिटल मिलेगा 60 में से। लॉस होता तो डेबिट करता कैपिटल को, प्रॉफिट है तो देना पड़ेगा इसलिए क्रेडिट कर रहा हूं। नाउ व्हाट इज योर बैलेंस, ठीक है, लेट्स सी। अच्छा देखता हूं किसका क्वेश्चन है, लेट मी चेक। हाँ मैडम बोलो, तेजल मैम। अरे इफ यू रेज द हैंड प्लीज एटलीस्ट पे द अटेंशन। आगे सो व्हाट इज द कैपिटल, ढूंढो बैलेंस ढूंढो चो। 60 + 6 66, 66 + 30 96, 96 + 4 1 lakh, 1,20,000 minus 12 1,08,000 minus 720 1,07,280. If it is wrong, let me know. 30 + 3 33, 33 + 15 43, 43 48, 48 + 6 54, 54 + 30 84 minus 10 74, 74 minus 600 73 400। चेक करो बराबर है क्या, प्लीज कंफर्म। टोटल आप कैसे करते हो, मैं करता हूं टोटल, मेरे मेरे दिमाग में चलता है, ठीक है। नाउ दिस इज द फाइनल कैपिटल, दिस बैलेंस विल बी शोन ऑन लायबिलिटी साइड। ये लायबिलिटी में दिखाया जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन P&L ये ट्रायल बैलेंस आया होगा, ये ट्रायल बैलेंस में होगा, बैलेंसेस जो दिए वो ट्रायल बैलेंस में होंगे, बराबर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, कैपिटल में क्रेडिट हुआ है, डेबिट होगा P&L में। दूसरा इफेक्ट P&L डेबिट। सैलरी कैपिटल को क्रेडिट हुई है, दूसरा इफेक्ट P&L डेबिट। कमीशन टू पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट हुई है, दूसरा इफेक्ट P&L डेबिट। बिकॉज इफ यू रिमेंबर मैंने बोला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर ऑल आर एक्सपेंसेस, इसलिए P&L के डेबिट में और सेकंड इफेक्ट कैपिटल के क्रेडिट पे। प्रॉफिट कहां से आया होगा,
प्रॉफिट पी एंड एल से आया होगा, तो ये पी एंड एल के डेबिट पे नेट प्रॉफिट मिला होगा जो हमने ट्रांसफर कर दिया कैपिटल के क्रेडिट पे। ठीक है, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज ए इनकम, कैपिटल के डेबिट पे पी एंड एल के क्रेडिट पे रहेगी। हो गए सेकंड इफेक्ट कंप्लीट। दे आर नॉट आस्क्ड अस टू प्रिपेयर पी एंड एल, दे आर नॉट आस्क्ड अस टू प्रिपेयर पी एंड एल, बट अगर पी एंड एल करता हूं, ध्यान देना मैं यहाँ पे नीचे कहाँ पे तो स्पेस रहेगी वहां पे करता हूँ, आई शुड हैव सम स्पेस। ओके, यहाँ पे ध्यान देना। सपोज मैं पी एंड एल करता हूं तो ऐसे दिखेगा, 2, दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जितना मुझे पता है उतना मैं कर रहा हूं। 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आनंद एंड भरत। 2, सैलरी टू आनंद, एक्सपेंसेस है ना। देन 2, कमीशन टू भरत, टू भरत, जितना हमें पता है उतना लिख रहे हैं। एंड देन यहाँ पे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इनकम, आनंद एंड भरत। देखते हैं। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है देखो, 6,000 एंड 3,000। कैपिटल के क्रेडिट में, मतलब कहाँ पे तो डेबिट होना चाहिए, पीएनएल के डेबिट में, पीएनएल के डेबिट में 6,000 3,000। दो इफेक्ट कंप्लीट, यस। यहाँ पे डेबिट, पीएनएल में कैपिटल में क्रेडिट। सैलरी टू आनंद, देखो कितनी क्रेडिट है, सैलरी कितनी क्रेडिट की है आपने, 30,000, एंड कमीशन कितनी क्रेडिट की है, 15,000। वहां पे क्रेडिट है मतलब पीएनएल में डेबिट, यहाँ पे 30,000 15,000। ठीक है। ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आई मीन, कितना डेबिट किया आपने, 720 एंड 600। अगर कैपिटल में डेबिट है तो कहाँ पे क्रेडिट होना चाहिए, कहाँ पे क्रेडिट है, पीएनएल में क्रेडिट, 720 600। एंड ये सब होने के बाद आपको प्रॉफिट मिला था, नेट प्रॉफिट, जो 60,000 था। एंड वो आनंद एंड भरत में हमने बांट दिया, आनंद को 24,000 दिए, भरत को 36,000 दिए। सो ये सब आइटम्स, दिस इज एक्सपेंस, दिस इज एक्सपेंस, दिस इज एक्सपेंस, इसलिए पीएनएल के डेबिट में आ रहे हैं। और एक एक्सपेंस किसको पे करने, पार्टनर को, इसलिए कैपिटल में ऐड हो रहे हैं, कैपिटल के क्रेडिट पे। दिस इज इनकम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इनकम, इसलिए हम उसको पीएनएल के क्रेडिट में डालते हैं। और इनकम किसी से तो रिकवर करनी होगी, किससे रिकवर करनी है, पार्टनर से, इसलिए पार्टनर के कैपिटल के डेबिट में डाल रहे हैं। एंड ये प्रॉफिट आर पेएबल, प्रॉफिट किसको देने होते हैं, ओनर को, ये ओनर को देने हैं, पेएबल टू ओनर, इसलिए हमने ओनर के कैपिटल में ऐड किए। लिख लेना, ये भी लिख लेना, राइट। सेकंड इफेक्ट, ये पूछा नहीं है बट मैं समझा रहा हूं, फाइनल अकाउंट्स में हम ऐसे करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को क्या करेंगे, हम पीएनएल के डेबिट में ऐड करेंगे, कैपिटल में ऐड करेंगे। सैलरी को क्या करेंगे, सैलरी टू पार्टनर, पीएनएल के डेबिट में ऐड करेंगे, कैपिटल में ऐड करेंगे। कमीशन टू पार्टनर, पीएनएल के डेबिट में ऐड करेंगे, कैपिटल में ऐड करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, पीएनएल के क्रेडिट में, इनकम में ऐड करेंगे एंड कैपिटल के डेबिट में डाल देंगे। एंड जो प्रॉफिट आएगा वो पीएनएल के डेबिट में मिसिंग फिगर रहेगी, वो हम कैपिटल में ऐड करेंगे, क्रेडिट करेंगे। लिख लेना। अरे मैडम, they have not asked us to prepare P&L account, you don't have all figures, मैं जस्ट एक एक्सट्रैक्ट दे रहा हूं, ये आपको समझने के लिए है। ठीक है, आगे ये समझने के लिए है कि सेकंड इफेक्ट कहां पे आएगा। बच्चे बोलेंगे सर कैपिटल अकाउंट का सेकंड इफेक्ट है, कैपिटल अकाउंट दे हैव सेड इट इज अ बैलेंस, मतलब वो ट्रायल बैलेंस से लिया होगा।
ट्रायल बैलेंस में कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स दिए एंड बाकी एडजस्टमेंट्स दिए जो हम कर रहे हैं, ठीक है। एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स, ट्रायल बैलेंस के एक इफेक्ट, ठीक है। लिखो, जल्दी लिखो। So what you can observe, you can observe that all items recurring as well as non recurring, इसमें से नॉन रिकरिंग कौन सा था? यही खाली नॉन रिकरिंग था। कैपिटल बैलेंस, all other transactions, interest on capital, salary, commission, profit, drawings and interest on drawings, all were recurring। सब मिक्स कर दिए, एक ही अकाउंट में डाल दिए, कैपिटल अकाउंट में। एंड देयरफॉर द बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस 60 एंड 30 था, क्लोजिंग बैलेंस चेंज हुआ है, द बैलेंस हैज चेंज्ड एंड देयरफॉर अंडर दिस मेथड द कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस कीप्स ऑन चेंजिंग एंड देयरफॉर दिस मेथड इज कॉल्ड एज खिचड़ी मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब यही कैपिटल अगर हम थोड़ा ठीक से मेंटेन करते हैं, मतलब नॉन रिकरिंग को अलग एंड रिकरिंग को अलग, तो कैसे दिखेगा? उस मेथड को बोलाता है फिक्स कैपिटल मेथड। ये फ्लक्चुएटिंग था, अब हम लिखने जा रहे हैं फिक्स कैपिटल मेथड, यही, बट इसको दो में डालेंगे। लाइक एग्जांपल, आप आपके आपके कपबोर्ड में आप एक ही बॉक्स में सब डाल रहे हो या उसको अलग अलग जगह पे डाल रहे हो, अलग अलग जगह पे डालोगे तो थोड़ा सुटेबल रहेगा। लाइक कचरा, एक होता है कुछ तो ओला कचरा आणि दूसरा होता है सूखा, बराबर ना? हम दो अलग डस्टबिन रखते हैं और अलग अलग रखते हैं, दैट इज लाइक ए फिक्स कैपिटल मेथड। ओला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग, एंड अगर एक में ही डालोगे वो है खिचड़ी, वो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। सिंपल एग्जांपल, ठीक है। अब हम अलग अलग रखेंगे, ठीक से रखेंगे, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। राइट, फिक्स कैपिटल में कैसे होगा, लिखो। अंडर फिक्स कैपिटल मेथड, अब यहां पे हेडिंग है फिक्स कैपिटल मेथड। आंसर वही, खाली लिखने का तरीका अलग। ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, लिखो। Under fixed capital method, for every partner, there is a capital account and another is current account. So, try to understand like this. मैं वीडियो ऐड करता हूं तो आपको दिखेगा, ध्यान देना। लाइक आनंद का कैपिटल अकाउंट है, भरत का कैपिटल अकाउंट है, आनंद का करंट अकाउंट है, भरत का करंट अकाउंट है। हर पार्टनर के दो अकाउंट, एक कैपिटल एंड दूसरा करंट। कैपिटल अकाउंट किस लिए? टू रिकॉर्ड नॉन रिकरिंग ट्रांजैक्शंस, एंड करंट अकाउंट किस लिए? टू रिकॉर्ड रिकरिंग ट्रांजैक्शंस, ठीक है। अब हम रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना। ओके, पहले उनके कैपिटल बैलेंसेस थे, लेट मी चेक, 60,000 एंड 30,000 बैलेंसेस थे। सो आई विल से बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस है ना, क्रेडिट 60,000 एंड 30,000, 60,000 एंड 30,000 कैपिटल बैलेंसेस कैपिटल अकाउंट में लिखे। करंट अकाउंट को कोई बैलेंस थे क्या? नहीं थे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखने की जरूरत नहीं है, बट मैं समझने के लिए लिख रहा हूं। कोई बैलेंसेस नहीं होते तो वो हमें लिख के देते कि इतना इतना करंट अकाउंट को बैलेंस था, नहीं है, एक भी नहीं है।
आगे फिर सर उन्होंने ड्राइंग्स की, ड्राइंग्स कहां पे रिकॉर्ड होगी? ड्राइंग्स इज अ रिकरिंग, कैपिटल में खाली कौन सा एडिशनल कैपिटल रिकॉर्ड होता है? एडिशनल कैपिटल कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, उसके सिवा सब ट्रांजैक्शंस करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे। इसलिए ड्राइंग्स बीइंग रिकरिंग, अब कैपिटल को डेबिट नहीं करेंगे, करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे टू ड्राइंग्स। ड्राइंग्स डेबिट ही होगा, कैपिटल की जगह करंट अकाउंट को डेबिट हो गया। कितनी ड्राइंग्स थे देखते हैं, 12,000 एंड 10,000। अनंत 10, 12, भरत 10, करंट अकाउंट में डेबिट कर दी। सो व्हाट इज द एंट्री? यहां पे फ्लक्चुएटिंग में क्या एंट्री थी? अनंत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट क्रेडिट, भरत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट क्रेडिट। आप कैपिटल को डेबिट करते थे ड्राइंग्स, अब कैपिटल को नहीं करंट अकाउंट को डेबिट कर रहे हो। आनंद करंट अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट क्रेडिट 12,000 12,000, भरत करंट अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट क्रेडिट 10,000 10,000। डेबिट डेबिट ही रहेगा बट अलग जगह पे डाल दिया। उसके बाद सर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल में नहीं रिकॉर्ड होगा, करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखते हैं, हमने यहां पे रिकॉर्ड किया था आनंद का 6,000, भरत का 3,000, वही यहां पे रिकॉर्ड होगा 6,000 एंड 3,000। देन उसके बाद हमें सैलरी देनी है आनंद को 30,000 एंड कमीशन देनी है भरत को 15,000, बराबर। तो अब ये रिकॉर्ड करेंगे, कहां पे रिकॉर्ड होगा? फिक्स कैपिटल में, करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होगा बाय सैलरी टू बाय सैलरी एंड कमीशन, बाय सैलरी टू आनंद 30,000, बाय कमीशन टू आनंद टू भरत 15,000। मैं कैपिटल को क्रेडिट नहीं कर रहा हूं, फ्लक्चुएटिंग में मैं कैपिटल को क्रेडिट कर रहा था, फिक्स कैपिटल में मैं करंट अकाउंट को क्रेडिट कर रहा हूं। देन उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 720 एंड 600, फ्लक्चुएटिंग में सब कैपिटल में बट फिक्स कैपिटल मेथड में मुझे उसको करंट अकाउंट को डेबिट करना होगा 720 600। मैं कैपिटल को नहीं डालूंगा यहां पे। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 720 एंड 600। प्रॉफिट है 60,000 का प्रॉफिट था, हमने कैपिटल में ऐड किया था फ्लक्चुएटिंग में 24 36, अभी भी ऐड ही होगा बट कैपिटल में ऐड नहीं होगा, करंट अकाउंट में ऐड होगा बिकॉज इट इज रिकरिंग बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनटू ब्रैकेट नेट प्रॉफिट। इसके करंट अकाउंट में 24 ऐड होगा, इसके करंट अकाउंट में 36,000 ऐड होगा। सब ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो गए। देखो हमने स्प्लिट करके लिखा है, हमने स्प्लिट करके लिखा है नॉन रिकरिंग ट्रांजैक्शंस कैपिटल में, रिकरिंग ट्रांजैक्शन करंट में। जैसे दो कचरा अलग अलग इसमें डालते हो, सिमिलरली कैपिटल के ट्रांजैक्शंस पार्टनर के साथ के ट्रांजैक्शन दो अलग अकाउंट में रिकॉर्ड किए। नाउ व्हाट इज द बैलेंस? देखो कैपिटल में कितना बैलेंस है, सेम, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सॉरी दिस इज शुड बी कैरिड डाउन। कितना 60,000 एंड इसका कितना 30। द बैलेंस हैज रिमेन कांस्टेंट, balance has remained fixed and therefore this method is called as fixed capital method। आनंद का 60 का 60 रहा, भरत का 30 का 30 रहा। क्या चेंज होगा? तो करंट अकाउंट चेंज होगा। देखते हैं यहां पे इसका 36 प्लस 30 36, 36 प्लस 4
40 plus 20, 60. 60 minus 12, 48. 48 minus 720, 47,280. In case of Bharat, 3 plus 5, 18. 18 plus 6, 24. 24 plus 30, 54. अगर उससे 10,000 जाएगा 44 एंड 600 जाएगा तो 43,400. टू बैलेंस कैरिड डाउन. देखो यहां पे आनंद का कैपिटल कितना है 60 क्रेडिट. उसका करंट अकाउंट कितना है 47,280 क्रेडिट. क्रेडिट है मतलब क्रेडिट साइड वॉज हेवियर. दोनों मिला के कितने हो गए 60,000 प्लस 47,280. दोनों मिला के हो गए 1,07,280 जो यहाँ पे टैली होगा 1,07,280. अच्छा यहाँ पे देखो भरत का कैपिटल कितना है 30,000 क्रेडिट बैलेंस. क्रेडिट वॉज हेवियर इसलिए क्रेडिट बैलेंस बोल रहा हूँ. एंड उसका करंट अकाउंट का बैलेंस कितना है 43,400. देखो 30,000 प्लस 43,400 टोटल कितना है 74,400 जो यहाँ पे डाली होना चाहिए 73,400. मिल गया. इसको दो में लिख दिया खाली स्प्लिट करके लिख दिया. देखो सो दिस इज मोर सुटेबल मेथड. और इससे क्या होता है कि हमारा कंट्रोल रहता है कैपिटल अकाउंट पे एंड कैपिटल रिमेन्स फिक्स्ड एंड देयरफॉर दिस मेथड इज कॉल्ड एज फिक्स्ड कैपिटल मेथड. लिख लेना अब आंसर. एंड इफ एनीवन हैज क्वेश्चन प्लीज आस्क मी. लिखो क्रेडिट हैज रिमेन क्रेडिट डेबिट हैज रिमेन डेबिट बट दो अलग अकाउंट है. लिखो जल्दी करो. ठीक है ओके. अब मैं एंट्री समझाता हूं ध्यान देना एक एक. व्हाट आर द एंट्रीज transactions and entries. First, capital brought in by partner.
कैपिटल ब्रॉट इन बाय द पार्टनर। या इसको ए लिखो, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, he may bring some asset, cash बैंक, he may bring goods, vehicle, building, जो भी लाएगा लाने दो, that is a capital, any other asset। टू, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कोई भी मेथड हो, फिर वो फिक्स कैपिटल मेथड हो या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हो, कैपिटल ब्रॉट इन इज क्रेडिटेड टू कैपिटल ओनली। फ्लक्चुएटिंग में तो कैपिटल ही होता है, फिक्स में दिक्कत आती है। फिक्स में ये ट्रांजैक्शन कैपिटल में रिकॉर्ड किया जाएगा, करंट में कैपिटल ब्रॉट इन इज रिकॉर्डेड इन द कैपिटल ऑलवेज। ठीक है। बी, ड्रॉइंग्स बाय पार्टनर। जब पार्टनर ड्राइंग्स करता है, इंटर ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। टू, कैश, अगर वो कैश से विड्रॉ करता है, अगर बैंक से विड्रॉ करता है पर्सन के लिए बैंक, और ही में विड्रॉ एनी अदर एसेट। परचेस गुड्स करेगा तो टू परचेस, ठीक है, एनी अदर अकाउंट। ड्राइंग्स की एंट्री होती है एट द एंड ऑफ द ईयर, ये ड्राइंग्स कहां पे ट्रांसफर करना है, कैपिटल में। अब ड्राइंग्स को क्लोज करना है, ड्राइंग्स एज ए डेबिट बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में ड्राइंग्स डेबिट होता है, उसको क्लोज करना है, किसी को क्लोज करना है तो उसको उल्टा करना होगा, डेबिट को क्रेडिट करना होगा, क्रेडिट को डेबिट करना होगा। सो ड्राइंग्स एज ए डेबिट, उसका डेबिट कैपिटल को या करंट अकाउंट को डेबिट दिया जाएगा, डिपेंड्स ऑन द मेथड। सो लिखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर फ्लक्चुएटिंग है तो, अगर मेथड फ्लक्चुएटिंग है तो ड्राइंग्स खिचड़ी मेथड, फ्लक्चुएटिंग मतलब खिचड़ी, कहां पे जाएगा, कैपिटल में जाएगा। बट अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो दो अकाउंट है, कैपिटल एंड करंट, ड्राइंग्स विल बी ट्रांसफर टू करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, डिपेंड्स। दोनों में से एक रहेगा, दोनों नहीं रहेंगे, इधर यू विल फॉलोइंग फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ड्राइंग्स कहां पे ट्रांसफर करनी है, हम बोलते हैं कैपिटल में। कैपिटल में कब, जब फ्लक्चुएटिंग मेथड है, अदरवाइज कहां पे, करंट अकाउंट में। टू, ड्राइंग्स क्लोज कर दी। ड्राइंग्स कैपिटल से माइनस की जाती है, कैपिटल को डेबिट किया जाता है इफ इट इज फ्लक्चुएटिंग। 11th में जो कैपिटल आपने सीखा था वो फ्लक्चुएटिंग था, 12th में वी आर स्टडिंग फ्लक्चुएटिंग एट द सेम टाइम फिक्स्ड, सो वी हैव टू बी केयरफुल। सो ड्राइंग्स डिडक्ट होगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल से, राइट, फ्लक्चुएटिंग मेथड में कैपिटल से एंड फिक्स कैपिटल में करंट से। ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड, सी, पार्टनर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेते हैं पहले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर का कैपिटल है इसलिए हम उसको इंटरेस्ट दे रहे हैं, उसके पैसे हम यूज कर रहे हैं इसलिए हम उसको इंटरेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, हमारा एक्सपेंस है तो डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है। टू, पार्टनर्स
capital account, if it is fluctuating, and if it is fixed, फिक्स रहेगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां पे जाएगा? करंट में जाएगा, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट. if it is fixed. सो क्रेडिट किसको करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पार्टनर को देना है, तो उसके कैपिटल में या करंट अकाउंट में ऐड करेंगे. अगर फ्लक्चुएटिंग है तो एक ही ऑप्शन है कैपिटल, बट अगर फिक्स्ड है, योर टू ऑप्शंस कैपिटल एंड करंट, तो कहां पे डालोगे? करंट में डालोगे. एंड सेकंड, interest on capital being nominal in the nature, being expense, is to be transferred to P&L account. उसको डेबिट है, देखो एंट्री में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस डेबिट है, दैट डेबिट इज ट्रांसफर टू P&L डेबिट. तो एंट्री आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. क्या एंट्री आ गई? P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. नहीं समझ में आता तो यहां पे देखो, P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. P&L के डेबिट में, मतलब P&L डेबिट है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं P&L के डेबिट पे आएगा एंड कैपिटल या करंट अकाउंट के क्रेडिट पे आएगा. देन कैलकुलेशन बताए ओपनिंग पे पूरे साल का, एडिशनल पे फ्रॉम द डेट ऑफ एडिशन टिल डेट. कैलकुलेशन अलग, एंट्री अलग. कैलकुलेशन करने के बाद एंट्री करते टाइम हमें क्या याद रखना है? अगर वो फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो कैपिटल में डालो, कैपिटल के क्रेडिट में डालो, कैपिटल में ऐड करो. अगर फिक्स कैपिटल है तो करंट में ऐड करो. ठीक है. डी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. वो हमारा पैसा यूज कर रहा है, वो हमारा पैसा यूज कर रहा है, इसलिए हम उसको इंटरेस्ट लगा रहे हैं. इट इज इनकम ऑफ द फर्म. इनकम है तो क्रेडिट होगा, और हम उसके कैपिटल या करंट अकाउंट से रिकवर करेंगे. पार्टनर्स कैपिटल इफ फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल को, अगर फिक्स कैपिटल है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का, ड्रॉइंग्स करंट में जाता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी कहां पे जाएगा? करंट में. पार्टनर्स करंट अकाउंट. इन केस ऑफ फिक्स्ड, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इनकम, इसलिए मैं क्रेडिट कर रहा हूं. यहाँ पे उनसे कैपिटल या करंट अकाउंट से माइनस कर रहा हूं. उन कैपिटल या करंट को डेबिट करना मतलब माइनस, उनके कैपिटल से माइनस कर रहा हूं, करंट अकाउंट से माइनस कर रहा हूं, एंड इनकम में ऐड करना है, इनकम दिखाना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्रेडिट. And being interest on drawings nominal account, being income account, it is to be transferred to credit of P&L. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट किया एंट्री में आपने, उसका क्रेडिट P&L को दिया जाएगा, उसको क्लोज किया जाएगा, उसको डेबिट किया जाएगा. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डेबिट टू P&L अकाउंट क्रेडिट. इसलिए हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स P&L को क्रेडिट करो, कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट करो. देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स P&L के क्रेडिट पे, इनकम है इसलिए, इसके सामने बाय लिखा है मतलब वो डेबिट है. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टू P&L, क्लोज, क्लोज किया, कैपिटल को डेबिट किया और P&L को क्रेडिट किया. दो इफेक्ट हो गए. कैपिटल को कब? जब फ्लक्चुएटिंग है, एंड अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे. ठीक है. सो क्या क्या किया अभी? एडिशनल कैपिटल, ड्रॉइंग्स,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. नंबर ई, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर. हम पार्टनर को सैलरी और कमीशन दे रहे हैं, हमारा एक्सपेंस है. सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर अकाउंट डेबिट. टू, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो कैपिटल में ऐड होगा, अगर फिक्स कैपिटल तो करंट में ऐड होगा. And being nominal in the nature, salary or commission shows debit balance, that debit is given to P&L. क्लोज किया जाएगा by transferring the balance to P&L. एंट्री आ रही है, P&L अकाउंट डेबिट टू सैलरी और कमीशन टू पार्टनर. ठीक है. हाउ टू सॉल्व 2:3 फॉर 60? अरे मैडम, ये छोटे बच्चे करेंगे यार. 60,000 इन 2:3, 60,000 divided by 2 plus 3 multiply by 2. 60,000 divided by 2 plus 3 multiply by 3. रेशियो में डिवाइड करना है. So 60,000 divided by 5 multiply by 2. 60,000 divided by 5 multiply by 3. This is 24,000. This is 36,000. दोनों मिला के 60 होना चाहिए. ठीक है. ठीक है. And end, EF, transfer of net profit from P&L. जब P&L बनेगा, P&L में पार्टनर के कौन कौन से आइटम गए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस, सैलरी टू पार्टनर एक्सपेंस, कमीशन टू पार्टनर एक्सपेंस, बराबर. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इनकम. ये सब होने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा, that profit will be given to the partners in their profit sharing ratio. So profit है मतलब P&L के डेबिट पे नेट प्रॉफिट मिलेगा. क्रेडिट इज मोर देन डेबिट, इनकम इज मोर देन एक्सपेंस. हम वो कैपिटल में ऐड करते हैं या करंट अकाउंट में ऐड करते हैं, डिपेंड्स. सो एंट्री रहेगी P&L अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. इफ अगर फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल में, अदरवाइज पार्टनर्स करंट अकाउंट. सिंपल बोलू, एक ही ट्रांजैक्शन अगर फ्लक्चुएटिंग है तो एक ही ऑप्शन है कैपिटल. हर कुछ कैपिटल में डालो, जो सब 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 कैपिटल में डालो. फिक्स कैपिटल है मेथड
तो आपके पास दो ऑप्शन है, कैपिटल एंड करंट। एडिशनल कैपिटल छोड़ के बाकी सब करंट अकाउंट में, एडिशनल कैपिटल छोड़ के बाकी सब कुछ करंट अकाउंट में डालने का, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, दीज आर द एंट्रीज। कौन कौन से ट्रांजैक्शन होते हैं पार्टनर एंड फर्म के बीच में? कैपिटल, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, interest on drawings, salary and commission, and distribution of profit. These are the transaction between owner and the partnership firm. समझ में आ रहा है? Yes. If anyone has doubt, before we conclude for the day, if anyone has doubt, I will take those doubts. मेरा परसों लेक्चर होगा, कॉलेज में क्या स्टार्ट किया है? एनीवन?